So today we are going to discuss regarding the psychological therapies. So in the psychological therapies, why we are giving the psychological therapies to the patient, because the patient is having the acute illness, so they should not go to the severe condition. They cannot transfer from acute to the severe condition, so that we are improving the particular person's condition, and we are not manipulating the situation, we are manipulating the particular environment from the maladaptive to the adaptive environment, from normal abnormal condition to the normal condition. So we are giving the psychotherapy. Psychotherapy is one of the condition, is one of the reinforce और reassure the client. जो person होता है उसको reinforce करते हैं, reassure करते हैं, that is known as psychotherapy. So psychotherapy is an English word that is derived from the ancient Greek psyche, meaning that is a breathe, spirit, soul, and therapia means healing, and that is also called as medical treatment. So this is known as psychotherapy. Psychotherapy क्या होती है? It is an English word that is derived from the ancient Greek psyche. Psyche और थेरेपिया से बनाए ये शब्द. साइके मीन्स होता है ब्रीद करना अपने आप को, स्प्रिट करना, सॉल्व करना, सो दैट इज नॉन एज साइके. एंड थेरेपिया मीन्स होता है कि वी आर गिविंग थेरेपी in the form of healing and in the form of medical treatment, so that is known as psychotherapy. So the treatment of the disease by the psychic means क्या होता है? The psychic means होता है the persons की जो mental activity है वो hyper और hypo activity होती है. When the mental activities are become hypo and hyper, that is known as psychic. साइको के अंदर साइकिक के अंदर क्या होता है? जो एड है, ईगो है, सुपर ईगो है, वो क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है. दैट इज नोन एज साइकिक. तो साइकिक मेथड वी आर यूजिंग इन द एज ए इन फॉर्म ऑफ हिप्नोटिक मेथड. Now we have to see the definition of the psychotherapy. So psychotherapy is the treatment for the disorder of the mind or personality by psychological or psychophysiological method. So this definition is given by the Frederick Van Eden in 1892. और 1899 में इसने फ्रेडरिक और वान एडन ने इसको डिफाइन किया था कि साइकोथेरेपी इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी आर गिविंग इन द साइकेट्रिक डिसऑर्डर. टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर मीन्स होता है कि व्हेन द पर्सन इज हैविंग द दैट इज अ impaired mind or any personality, imbalance of the personality, imbalance of the mind, so we are giving this type of psychotherapy to the particular client by the psychological or psychophysiological method. किसके द्वारा देते हैं हम? साइकोलॉजिकल और साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड के द्वारा हम इस थेरेपी को प्रोवाइड करते हैं. जिनको पर्टिकुलर माइंड और पर्सनैलिटी के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो उसके लिए हम साइकोथेरेपी देते हैं. साइकोथेरेपी इज द रिलीफ ऑफ द डिस्ट्रेस. जो पर्सन के अंदर डिस्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, उससे हम उसको ट्रीट करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं. किसके द्वारा? साइकोथेरेपी के द्वारा. यदि किसी पेशेंट को डिस्ट्रेस होता है या पेशेंट के अंदर डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी की हम बात करें, मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल एबनॉर्मेलिटी, फिजिकल सबनॉर्मेलिटी, ठीक है, साइकोलॉजिकल सबनॉर्मेलिटी, इज द वन ऑफ द फिजिकल डिसेबिलिटी और साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी. So that we are giving this type of psychotherapy to the particular person. So distress, when the patient is getting any type of anxiety, stress or any type of depression, we have to give this type of therapy. So this therapy is merely based on particular theory और पैराडिगम. पैराडिगम क्या मतलब होता है कि इसके अंदर 4 मेथड होते हैं, जिसके अंदर आपका पैराडिगम के अंदर एक तो आपका पर्सन कोर बिलीफ कोर होता है, केयर होता है, क्योर होता है, प्रिवेंशन होता है, ठीक है. तो पैराडिगम होता है. पैराडिगम का मतलब होता है केयर, क्योर, ठीक है, एंड उसके बाद प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन. सो दीज आर द पैराडिगम वी आर गिविंग in the particular theory as a in form of theory. So these are the 4 concepts in the paradigm. So it is a requirement that is the agent performing the therapy has had some form of training in the delivering this. जो भी मेथड होता है साइकोथेरेपी का, हम वो मेथड को डिलीवर करते हैं, ठीक है, in the form of therapy. So the person should have the particular according to the requirement or according to the needs of the person. So we are giving this type of psychotherapy to the patient. Now we have to move on the aim. What are the aim of this therapy?
सो फर्स्ट एम इज द टू रिलीव द साइन एंड सिम्टम्स, किसी भी पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को ये रिलीव करने में हेल्पफुल होती है। साइकोथेरेपीज आर बिकम हेल्पफुल टू रिलीव द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एंड टू प्रमोट द रिकवरी। दे आर हेल्पफुल इन द टू प्रमोटिंग द रिकवरी ऑफ द पर्टिकुलर from the illness and to correct the basic psychopathology, those who are having any like incorrect basic psychopathology, so that this therapy is very helpful to correct the basic psychopathology in the person, and the person is having the any relapse feeling क्या होती है, relapse का मतलब होता है ill health, and the person is having the health is become ill, so that person is become relapsing, so that the psychopathological condition is become impaired। ठीक है, तो impaired होती है तो क्या होता है, altered होती है तब क्या होता है, हम उसको correct करते हैं by the psychotherapy के द्वारा। यदि किसी पर्सन का माइंड और बिहेवियर यदि किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इंटरनल स्टिमुलाई के अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, यदि किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो कैंसर के साथ साथ पेशेंट का मेंटल जो स्थिति है, ठीक है, वो भी चेंज होती है, और पर्टिकुलर पर्सन का जो फिजिकल जो स्टेमिना है वो भी चेंज होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रकार से जो ब्रेन डिजनरेशन हो जाता है, ठीक है, और हमारे शरीर की जो शारीरिक शक्ति होती है वो क्षीण होती चली जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम साइकोथेरेपी देते हैं, जिससे कि पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर उसको हम साइकोथेरेपी के द्वारा हम उनकी साइकोपैथोलॉजिकल कंडीशन को करेक्ट कर सकते हैं। टू रिहेबिलिटेट द क्लाइंट, तो रिहेबिलिटेट हम कहाँ करते हैं, एक तो कम्युनिटी एरिया के अंदर करते हैं, एक सोसाइटी के अंदर करते हैं। तो कम्युनिटी के अंदर सोसाइटी के अंदर क्यों हेल्पफुल होती है, क्योंकि कम्युनिटी में क्या होता है कि जब पर्सन के अंदर मेंटल एबनॉर्मलिटी आ जाती है, या पर्सन के अंदर यदि कोई भी फिजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, तो सोसाइटी में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, नो वैल्यू in the society, no value in the community, so that we are putting that same person to the particular same environment so that he can live safely। ठीक है, and with the with the communicative pattern or with the social he should maintain the social relationship with the society, so तो उसके लिए हम rehabilitate करते हैं क्लाइंट को, so that he can survive and he can mix with the society and he can mix with the community and he can survive their whole family। ठीक है, while doing the work। हेलो, हाँ, ये अरे एक मिनट यार, मैं क्लास ले रहा हूँ। मैंने बीच में के दी है, मैं बीच से सहमत हूँ, मुझे कोई लगता है किसके अंदर।
So sorry to disturb you. So rehabilitate the client on his setting either in the community and social group. आपको पता है कि यदि किसी पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन की बीमारी होती है, तो मेंटल रिटार्डेशन की जब बीमारी होती है तो पर्सन उसको सोसाइटी में बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी होती है, मानसिक स्थिति खराब होती है, फिजिकल स्थिति खराब होती है, तो उसको क्या होते हैं, सोसाइटी से सब लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर हम ऐसी रिहेबिलिटेशन थेरेपी देते हैं जिससे कि पर्सन को इतना काबिल बना देते हैं कि सो दैट ही कैन मूव टू द सोसाइटी एंड ही कैन सर्वाइव देयर होल फैमिली एंड ही कैन मिक्स इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी। उसको रिहेबिलिटेट करते हैं सो दैट ही कैन अर्न द मनी। उसके अंदर एक रिहेबिलिटेशन थेरेपी हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। टू प्रिवेंट द रिलैप्स, टू प्रिवेंट द रिलैप्स का मतलब होता है, मैंने बताया था, इल हेल्थ। जो इल हेल्थ होती है उसको प्रिवेंट करने में ये हेल्पफुल होती है। तो दीज आर द सम ऑफ द 5 एम ऑफ दी दिस थेरेपी। तो फर्स्ट एम क्या है आपका, टू रिलीव द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पर्टिकुलर इलनेस, टू प्रमोट द रिकवरी and to correct the basic psychopathology and to rehabilitate the client in his own setting either in the community or in the social group and to prevent the relapse. So these are the 5 aim of the this therapy. Now we have to move the goals of the psychotherapy. What are the goals of the psychotherapy? There are some of the goals to improve an individual well-being and mental health. ये पर्सन के अंदर जो वेलबींग होता है या मेंटल हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। गोल क्या है फर्स्ट साइकोथेरेपी का, क्या होता है कि पर्सन की जो मेंटल स्थिति है उसको कम करती है, उसको वेलबींग बनाती है पर्सन को, और एक पर्सन के अंदर विल पावर को इम्प्रूव करती है और उसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द साइकोथेरेपी। सेकेंड इज द गोल क्या है इसका, टू रिजॉल्व द ट्रबलसम बिहेवियर। जो यदि किसी पर्सन का बिहेवियर यदि माल अडेप्टिव है, एबनॉर्मल है, उसको उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। उसके बिलीफ, यदि उसका बिलीफ खराब हो रहा है, जैसे कि मैंने बात करें हम डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है, ए फॉल्स फिक्स बिलीफ, मतलब एक व्यक्ति के अंदर ऐसी स्थिति बन जाती है, बिलीफ बन जाता है, विश्वास बन जाता है कि सामने वाले लोग मुझे हानि पहुंचाना चाहते हैं। प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपल्सन। का कंपल्सन खराब हो रहा है, कंपल्सन का मतलब होता है कि आपने सुना है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब होता है इरेशनल थॉट्स, बार हमारे दिमाग के अंदर बार बार आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं। जब भी हम नॉर्मल स्थिति में घर बैठे रहते हैं या नॉर्मली हम यदि चुपचाप बैठे हैं तो अचानक सडनली हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जो हम उनको चाहकर भी हम उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम कंपल्सन करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने नाइट में सपना देखा, ठीक है, या आपने दिन में कोई आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के दौरान आपको कोई भी इस तरह का इवेंट आपके दिमाग में आ गया या कोई इमेज आ गई आपके दिमाग के अंदर, तो उसके इमेज के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वो अपने बिहेवियर को डेवलप करोगे। तो दैट इज नोन एज कंपल्सन। ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने में हेल्पफुल करती है। यदि थॉट्स, यदि किसी व्यक्ति के थॉट्स यदि इरिलेवेंट थॉट्स आ रहे हैं या अनरियलिस्टिक थॉट्स आ रहे हैं तो उनको वो क्या करती है, रिजॉल्व करती है। यदि किसी पर्सन की इमोशनल कंडीशंस खराब हो गई है, इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशंस में जा रहा है, पर्सन सैड हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हैप्पी हो रहा है, तो उस इमोशंस जो है, इमोशनल कंडीशंस को रिजॉल्व करने में ये हेल्पफुल होती है। देन अगेन जो है गोल ऑफ दी साइकोथेरेपी, टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप एंड सोशल स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। जो पर्सन होता है उसके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। और सोसाइटी के अंदर जो भी हमारा सोशल रिकग्निशन होता है, सोशल एडजस्टमेंट होता है, सोशल अडेप्टेबिलिटी होती है, सोशल कोपिंग स्किल्स होती है, उनको ये फॉर्म करता है, डेवलप करता है। ठीक है, एक व्यक्ति के अंदर कि आप किस तरह सोसाइटी में आप कंप्लीटली एक एज ए होल मेंबर आप उसमें रह सकते हो। ठीक है, वहाँ की जो एक्टिविटी है, जो भी वहाँ के प्रोग्राम हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, लोगों के साथ बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो, सोशल इंटरेक्शन एक अच्छा डेवलप कर सकते हो। सोशल स्किल जो होती है, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है,
एक हमारा वर्बली स्किल्स होती है, एक हमारा फिजिकली स्किल्स होती है, एक हमारा जो रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल सपोर्ट होता है, उसमें हेल्पफुल होती है। दैट टू एनहेंस द इंसाइट एंड अडॉप्टिंग कोपिंग स्किल्स, जो इंसाइट होती है पर्टिकुलर पर्सन के। अब क्या होता है देखो, साइकोथेरेपी में ध्यान रखना, साइकोथेरेपी के अंदर जो इंसाइट होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। इंसाइट जो होती है वो एब्सेंट होती है साइकोथेरेपी के अंदर। और जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर इंसाइट प्रेजेंट होती है। इंसाइट यहाँ पर एब्सेंट हो रही है साइकोलॉजिकल साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर। और हमारी जो कोपिंग स्किल्स हैं उनको वो एनहेंस करती है। हमारी जो कोपिंग स्किल्स हैं, हम कोप कर रहे हैं सिचुएशन के साथ, तो अडेप्टिव जो नॉर्मल जो कोपिंग स्किल्स हैं उनको वो इम्प्रूव करेगी, एनहेंस करेगी और हमारी इंसाइट को डेवलप करेगी, ठीक है। देन टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम स्किल्स, जो प्रॉब्लम स्किल्स सॉल्विंग स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। हमारे अंदर जो कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, हमारे कॉग्निटिव में चेंजेस आते हैं, तो उनको रिफ्रेम करने में हेल्पफुल होते हैं। रिफ्रेम का मतलब होता है कि हमें किसी के बारे में गलत धारणा है या गलत हम सोच रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है। हाँ, और या हम किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, या हमारा बिहेवियर एक किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस तरह की ये चीज़ होती है, उनको रिफ्रेम करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हम उस यदि हमें अच्छी लगेगी चीज़ तो हम करेंगे, और यदि खराब लगेगी तो उसको हट जाएंगे उस जगह से। तो दैट इज वन ऑफ द गोल ऑफ द साइकोथेरेपी। Now we have to move on the classification. There are some of the classification can be categorized here: psychoanalytic therapy, behavior therapy, cognitive therapy, hypnosis or hypnotic therapy, relaxation therapy, individual therapy, supportive psychotherapy, group therapy, family therapy, marital therapy, and milieu therapy. So there are 11 types of the therapy. हम ये दी जाता है some of the important therapies, इट में कम इन द एग्जाम में आ सकती है। कोई भी एक थेरेपी के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी टेक्निक्स के बारे में पूछा जा सकता है। सो देयर आर सम ऑफ दी साइकोथेरेपीज। अब यदि एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द साइकोथेरेपी, यदि एक ऑप्शन दे दिया आपको कि व्हाट आर द विच वन इज द साइकोथेरेपी इन द पर्टिकुलर फॉलोइंग आइटम, सो उसके अंदर आपको यदि ऑप्शन दे दिए तो आपको समझना है कि साइकोथेरेपी कौन सी होती है, फिजिकल थेरेपी कौन सी होती है, सोमेटिक थेरेपीज कौन कौन सी होती है, तो उसके हिसाब से आपको उसका आंसर आपको लिखना है। देन उसके बाद है कॉन्ट्राइंडिकेशन। जो साइकोथेरेपी होती है हम उसको कॉन्ट्राइंडिकेट हम किस कंडीशन में करते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम साइकोथेरेपी नहीं दे सकते। तो फर्स्ट आपकी स्थिति क्या है, एक्यूट साइकोसिस। यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक्यूट साइकोसिस होता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम साइकोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। जैसे कि यदि किसी पर्सन को साइकोटिक डिप्रेशन हो रहा है, यदि सीवियर डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन इज बिकम ए सीवियर डिप्रेशन। यदि किसी पर्सन को हाइपरमेनिया हो रहा है, मेनिया कंडीशन आ रहा है, यदि किसी पेशेंट को सीजोफ्रेनिक कंडीशन हो रही है, सीवियर सीजोफ्रेनिक डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, तो हम उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। जो सीवियर कंडीशन होती है, माइल्ड के अंदर हम तो दे सकते हैं, बट पर्टिकुलर हम जो सीवियर कंडीशन होती है उसके अंदर हम नहीं दे सकते। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि स्पेशली देयर आर टू ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हैं आपके, डिमेंशिया और डेलीरियम। बट डेलीरियम के अंदर हम दे सकते हैं, बट डिमेंशिया के अंदर हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी जो है वो लॉस होती है। लॉस कॉन्शियसनेस तो अच्छा रहता है, जब कॉन्शियसनेस अच्छी होगी तो पर्सन अंडरस्टैंड भी करेगा उस थेरेपी को। जब उसकी कॉन्शियसनेस से यदि पूरी तरह से डिस्टर्ब होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर डिमेंशिया के अंदर हम क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि पर्सन का मेमोरी लूज रहता है। मेमोरी लूज होने के कारण हम उसके यदि में बार बार वो जो साइकोथेरेपी के अंदर जो स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, यदि वो उनको रिमाइंड नहीं कर पा रहा है, यदि उनको कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको नहीं दे सकते, क्योंकि उससे और ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस वाली कंडीशन और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी भी सोसाइटी या सोशल सिचुएशन के बिकेम एंटी रहता है। एंटी का मतलब होता है एंटी, जो अगेंस्ट में रहता है, किसी सोसाइटी के अगेंस्ट में रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं सोशल एंटी सोशल पर्सनैलिटी। जैसे मैं किसी सोसाइटी को नहीं मानता, ठीक है, मैं इस धरती पर केवल अकेला हूँ, मैं इस पूरे पृथ्वी पर अकेला हूँ, नो सोसाइटी, नो फैमिली, नो कम्युनिटी, नो एनी नेशन,
ठीक है, मैं ही हूँ केवल, कोई नहीं है। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी जो सोसाइटी के अगेंस्ट में रहता है, सोशल सिचुएशन के अगेंस्ट में रहता है, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं एंटी सोशल पर्सनल behavior. So anti-social personal behavior is become a anti-social personality disorder. Severe borderline personality disorder. Severe borderline का मतलब होता है it is a severe type of the personality disorder जिसमें कि person के अंदर suspicious होता है, is not having any particular communication pattern to anybody. Okay? He is not supporting to anybody. He is not cooperating to anybody. He is become suspicious and going to harm anytime with any person. So that is a severe borderline personality. केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में, दूसरों को वो हार्म पहुंचाना चाहता है, हार्म करना चाहता है। तो दैट इज उसके माइंड के अंदर, जिसको कहते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सीवियर फॉर्म में होती है, जो पर्सन के अंदर सुसाइडल और होमिसाइडल आइडियाज जनरेट हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद है सीवियर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सीवियर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंदर होता है जो ज़्यादा अल्कोहल पी रहा है, या उसके अलावा गांजा, भांग या मॉर्फिन यूज़ कर रहा है। तो इस तरह की जो सब्सटेंस हैं जो पर्सन के मेंटल बिहेवियर को एक नॉर्मल ना करके एबनॉर्मल करते हैं, उस कंडीशन में उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इस तरह की थेरेपी। जो सीवियर, जो अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है, ड्रग्स ज़्यादा ले रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम साइकोथेरेपी दे करके हम क्या करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पुअर साइकोलॉजिकल इंसाइट, जिसकी पर्सन की जो इंसाइट है वो यदि पुअर होती है, साइकोलॉजिकल इंसाइट का मतलब होता है, मैंने पहले बताया था कि साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर इंसाइट हमेशा एब्सेंट होती है। यदि एब्सेंट इंसाइट है किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको इग्नोर करते हैं, वी आर नॉट गिविंग साइकोथेरेपी। सुसाइडल और होमिसाइडल पेशेंट, जिसके अंदर होमिसाइडल और सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है, उस पेशेंट को भी हम साइकोथेरेपी नहीं दे सकते, क्योंकि वो दूसरों को हानि पहुंचा सकता है, हमें खुद को हार्म पहुंचा रहा है। तो उस कंडीशन में हम ऐसे व्यक्ति को साइकोथेरेपी के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते। सो फर्स्ट इज द साइको एनालिटिक थेरेपी। अब आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था कि उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट आर द साइकोथेरेपीज, कौन कौन सी हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, उसको किस तरह इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, और किस तरह उसके पर्टिकुलर गोल हैं, व्हाट आर द एम क्या है उसके, ठीक है, और हम किसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन द साइको एनालिटिक थेरेपी। साइको एनालिटिक थेरेपी होती है साइको एनालिसिस। ये साइको एनालिसिस शब्द से बनी है। साइको मीन्स होता है माइंड, एनालिसिस का मतलब होता है, क्या करते हैं एनालिसिस का मतलब, आइडेंटिफिकेशन और जस्टिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन विद द टू आस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब दो चीज़ों के बीच में एक कंपैरिजन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, जस्टिफिकेशन होता है, जिसको कहते हैं एनालिसिस करना। जैसे मैं अपने बिहेवियर को किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर से यदि आइडेंटिफाई करता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ, सो मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, उस पर्सन के अंदर क्या क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को मैं मेरे माइंड के अंदर किस तरह उसको फॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं ही अपने आप को अच्छा समझ रहा हूँ, दूसरे वाले सामने वाले को अच्छा नहीं समझ रहा हूँ, तो दैट इज नॉट माई प्रॉपर साइकोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, साइको का मतलब होता है मेरे माइंड को मुझे एनालिसिस करना है, उसके बाद मुझे पेशेंट को तक पहुंचना है, उसको मुझे सपोर्ट देनी है, सपोर्टिव थेरेपी देनी है, और उसको पर्टिकुलर गाइडेंस करना है, काउंसलिंग करना है। यदि किसी काउंसलर का यदि माइंड ही खराब है, यदि किसी काउंसलर की गाइडेंस करने की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मेंटल एक्टिविटी, मेंटल जो है वो पावर है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो जब खुद की अच्छी नहीं है तो वो सामने वाले को कैसे ट्रीट करेगा, कैसे थेरेपी देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम बस में बैठते हैं, तो कई बार हम बस की सीट पे बैठे हुए होते हैं, तो कई बार बुजुर्ग लोग आते हैं, ठीक है, ओल्ड पर्सन आता है, या लेडीज़, जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं, या इसके अलावा जो जिन प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, या कोई हैंडीकैप्ड होते हैं, तो वो आते हैं, हम उनको सीट नहीं देते। सीट क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि पहले हमारे अंदर एक अनकॉन्शियस ड्राइव जो होती है वो जनरेट होती है, जो अनकॉन्शियस ड्राइव जो है वो ऑलरेडी रिप्रेस्ड होती है, और वो किसी के अंदर फीलिंग्स को जागृत नहीं करती है, डेवलप नहीं करती है, सो दैट उनके अंदर एक फीलिंग्स नहीं होती है। यदि आपके इनसाइड प्रेजेंट है, तो आपके अंदर जो ड्राइव है वो क्या होगी, वो ऑपरेट होगी। यदि आपकी इनसाइड अच्छी है,
तो डराइव ऑपरेट होगी, तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि रियली उसकी प्रॉब्लम जो है वो रियल है या अनरियल है। ये रियल प्रॉब्लम है तो आप सीट ऑफर करोगे, यदि अनरियल है तो नहीं करोगे। आप किसी को भिखारी को पैसा दे दो, सबसे पहले ये देखते हो कि यार उसने कपड़े तो अच्छे पहन रखे हैं, ठीक है, हट्टा कट्टा आदमी है, हम पैसे क्यों दें इसको, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस हो गया उसका। किसी खाने को स्टार्ट करने से पहले हम उसका एनालिसिस करते हैं कि स्पाइसी है, तीखा है, इसके अंदर मसाला ज़्यादा है या कुछ है, तो पहले उसको एनालिसिस करते हैं। जो सामने यदि कोई आपके सामने यदि मिठाई रखी हुई है तो आप एनालिसिस करोगे कि ये मीठी चीज़ है जो मेरे अंदर एक सलाइवा को प्रोड्यूस कर रही है, जिससे कि मैं इसको खा करके मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर सकता हूँ। तो दैट इज़ वन ऑफ द एनालिसिस। किसी सामने वाली वस्तु को एनालिसिस, जैसे कि हमारे सामने कोई ईंट रखी हुई है, हम कहते हैं कि इस ईंट को हम उठा सकते हैं, ठीक है, कि ये भारी है, ठीक है, ये ईंट जो है वो भारी है, बट ये जो प्लास्टिक की चीज़ है ये हल्की है। तो उसको एक प्रकार से इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको अटेंशन करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं उसको फोकस करते हैं, और फोकस करने का अटेंशन, फोकसिंग, और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको परसीव करते हैं, ठीक है। तो ये साइको एनालिटिक के अंदर ये पर्टिकुलर कंडीशन डेवलप होती है। साइको एनालिटिक के अंदर हम बात करेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज साइको एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द माइंड। साइको एनालिसिस का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ द माइंड। इट वाज डिस्कवर्ड, इट वाज डेवलप्ड बाय द सिगमंड फ्रूड एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी का जो एंड हो रहा था तब उस टाइम सिगमंड फ्रूड ने इस थ्योरी को डेवलप, थेरेपी को डेवलप किया। इट इज़ ए प्रैक्टिकल टेक्निक होती है, वो मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है। इट इज़ ए प्रैक्टिकल टेक्निक ऑफ ट्रीटिंग द मेंटल इलनेस। इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग थेरेपी, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। इट इज़ टेकिंग मोर टाइम कंज्यूमिंग थेरेपी। इन दिस थेरेपी थेरापिस्ट ब्रिंगिंग द अनकॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पर्सन का जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसको कॉन्शियस माइंड के अंदर चेंज करती है। ये था साइकोथेरापिस्ट के द्वारा ये क्या होता है, इस थेरेपी को यूज किया जाता है, जो यदि किसी पर्सन का अनकॉन्शियस माइंड है उसको कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट और डाइवर्ट करने में हेल्पफुल होती है। दिस इज नोन एज साइको एनालिसिस। Definition: it is a therapeutic technique of the treating psychiatric disorder by the psychological mean. So एक थेरापेटिक टेक्निक्स होती है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है, जिसका मतलब है कि हम सबसे पहले उसको समझेंगे उसका साइकोलॉजिकल मीन क्या है। यदि हमें किसी चीज़ को हैंडल करना है, यदि किसी चीज़ को हमें ऑपरेट करना है, यदि किसी चीज़ को हमें पर्टिकुलर सपोर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी साइकोलॉजिकल मीन को आइडेंटिफाई करेंगे। साइकोलॉजिकल मीन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उनको ट्रीट करेंगे बाय द थेराप्यूटिक टेक्निक्स के द्वारा, दैट इज नोन एज साइको एनालिटिक थेरेपी। देन उसके बाद क्या होता है, इसमें ब्रिंग द अनकॉन्शियस थॉट्स, जो पर्सन के अंदर जो अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको ये कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होती है टू द कॉन्शियस माइंड के अंदर, सो दैट रिप्रेस्ड एक्सपीरियंस एंड इमोशंस कैन बी कम आउट। जो पर्सन के अंदर जो एक्सपीरियंस है और इमोशंस हैं वो क्या होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड से बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। वो मेनली किस में होता है, चाइल्डहुड के अंदर होता है। एंड उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सरफेस पर लाते हैं। सरफेस जो होती है आपका कॉन्शियस माइंड का जो सरफेस होता है उस तक हम ले आते हैं। जो सप्रेस्ड फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, उनको हम अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड की जो सरफेस होती है उस पर ले आते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने के बाद उसको एक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज साइको एनालिटिक थेरेपी। Next is the aim. What are the aim we have to follow in the psychoanalytic therapy? First of all, we have to identify the behavioral deviation. Any behavioral deviation is there, so that we have to identify in each and every person. ठीक है जी, कोई भी पर्सन होता है, उस पर्सन के अंदर उसकी बिहेवियरल डिविएशन, उसकी बिहेवियर के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है, उसको हमें क्या करना, आइडेंटिफाई करना। हमें किसी व्यक्ति से यदि हमें काम निकलवाना है, काम करवाना है, ठीक है, या उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उससे आईपीआर मेंटेन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बिहेवियर को सबसे पहले
पहचानेंगे। जब हम किसी पेशेंट को इंटरेक्ट करते हैं, जब हम वार्ड में जाते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अंदर क्या कमी है, कैसा है उसका बिहेवियर। यदि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वायलेंट है, तो हम उसको थोड़ा टाइम देंगे, उसके साथ IPR मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसको कम्युनिकेट करेंगे 1 बाय 1 स्टेप्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने पर्टिकुलर हिस्ट्री कलेक्शन प्रोसेस के अंदर। हिस्ट्री कलेक्शन प्रोसेस जा करके हमें नहीं करना है, सबसे पहले हमें उसके साथ IPR मेंटेन करना है, म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल ट्रस्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करना है, कम्युनिकेट करना है। उसके करीब 2-3 दिन बाद हमें क्या करना है, उसके से हिस्ट्री, यदि उसका बिहेवियर उसके लिए तैयार है, रेडी है टू गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सो दैट वी हैव टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री टेकिंग प्रोसेस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी, यदि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी यदि डिफेक्टिव है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल होती है। रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स, रिजॉल्विंग द सेंट्रल इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट चाइल्डहुड, यदि बच्चे के अंदर बचपन से यदि उसके अंदर इमोशनल प्रॉब्लम, अंदरूनी इमोशनल प्रॉब्लम है, तो उसको रिजॉल्व करती है और जो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीव करने में हेल्पफुल होती है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम, मतलब यदि हमारे अंदर कैपेसिटी अच्छी है, जजमेंट कैपेसिटी अच्छी है, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डेवलप करेंगे, जिससे कि हम उसको एक प्रॉब्लम, उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें इस थेरेपी के द्वारा। ये हमारे साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी को प्रमोट करती है। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होती है, जैसे कि साइकोलॉजिकल इमैच्योरिटी, जैसे कुछ लोग होते हैं इमैच्योर होते हैं, कुछ लोग मैच्योर होते हैं। तो इमैच्योरिटी जब होती है तो उसके अंदर क्या करता है, ये मैच्योर कंडीशन को डेवलप करता है, प्रमोट करेगा साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी को, पर्सन के अंदर मैच्योर बनाता है पर्सन को। यदि मैच्योरिटी है तो उसको मैच्योर बनाने में हेल्पफुल होती है। प्रमोट ईगो स्ट्रेंथ, जो ईगो होता है, ईगो बाउंड्रीज जो होती है, ईगो बाउंड्रीज को कंट्रोल करती है, प्रमोट करती है कि दे आर नॉट हैविंग मोर ईगो पैटर्न डेवलप ना हो, जैसे कि उसके अंदर जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस जो है उनके अंदर इम्बैलेंस होगा, तो आपकी मेंटल जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। हेल्प द क्लाइंट टू अटेन द ग्रेटर सेल्फ नॉलेज, ये क्या करता है कि पर्सन की जो नॉलेज होती है उसको एक बहुत अच्छी तरह से शार्प बनाता है, सेल्फ कंट्रोल करने की क्षमता को इंक्रीज करता है। यदि आज छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर एग्रेसिव हो जाते हैं, तो हमें सेल्फ कंट्रोल करना सिखाता है, हमारे नॉलेज को एक अटेन करना सिखाता है, इसके बारे में उसको जानना, अत्यधिक जानना और उसके बारे में अत्यधिक एक्सपोज करना, ठीक है, जैसे कि हम उस चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट कर सकें। फैसिलिटेट द क्लाइंट कैपेसिटी, जो क्लाइंट की जो कैपेसिटी है उसको फैसिलिटेट करने में हेल्पफुल होती है, पर्सन को एक लव की तरफ मूव करने में, उसको वर्क के प्रति एक डेवलप करने के अंदर एक हेल्पफुल होती है। प्रिजर्व द मेंटल हेल्थ, यदि किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ यदि डिस्टर्ब है तो उसको प्रिजर्व करने में हेल्पफुल होती है। रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द डिनायर इम्पल्सिस, जो हमने जो इम्पल्सिस डिनाई की हैं उनकी जो प्रेशराइज, यदि हमें प्रेशराइज कर रही है तो उसको कम करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। जो उस कंडीशन में क्या होता है, अपने आप को पर्सन अच्छा फ्री फील करता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सके। डेवलप द इंसाइट इनटू द क्लाइंट, जो इंसाइट होती है ये पुअर होती है, उसको ये डेवलप करता है इंसाइट के अंदर, इंसाइट को अच्छी तरह से डेवलप करता है पर्सन के अंदर, उसकी प्रॉब्लम के बारे में उनको अवेयर कराता है। इंस्टिक्ट जो होती है उनके अंदर, इंस्टिक्ट का मतलब होता है कि उनके अंदर क्या क्षमता है उसको वो जागृत करता है, नीड्स क्या होती है उनको फॉलो कराता है, उसकी विशेष क्या है उनको भी जनरेट करता है, ठीक है। तो ये इसमें हेल्पफुल होता है। ओवरकम एंजाइटी, यदि किसी पर्सन को एंजाइटी ज़्यादा हो रही है तो उनको एंजाइटी को कम करता है। करेक्ट द साइकोपैथोलॉजी, यदि बेसिक साइकोपैथोलॉजी डिस्टर्ब है तो उसको करेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। उसके बाद है इंडिकेशन, हम ये साइकोएनालिटिक थेरेपी किस पर्टिकुलर इंडिकेशंस के अंदर हम दे सकते हैं। फर्स्ट है आपका एज रिग्रेशन हाइप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी आपने सुना है, हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिक थेरेपी, हिप्नोटाइज करते हैं पर्सन को। हिप्नोटाइज का मतलब होता है पहले उसको एनालिसिस करेंगे फिर उसको हिप्नोटाइज करेंगे। आपने देखा होगा कि गिविंग द कमांड,
टू द पर्टिकुलर पर्सन। यदि कोई थेरापिस्ट किसी व्यक्ति को कमांड कर रहा है या किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो सबसे पहले उसको जस्टिफाई करेगा, एनालिसिस करेगा कि क्या क्या उसकी प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जिससे उसको मेन डिस्टर्ब हो रहा है, उसके माइंड के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले उसके एक सॉल्यूशन डेवलप करेगा। यदि किसी पर्सन के अंदर किसी भी चीज़ से फियर है या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से सिचुएशन से उसको फियर है, तो उसको भी ये उसमें भी हेल्पफुल होती है। यदि किसी पर्सन के अंदर मोर अल्कोहलिज्म होता है, मोर ड्रग एडिक्ट होता है, तो उसको एडिक्शन को कम करने में हेल्पफुल होती है। हैबिट कंट्रोल, यदि किसी पर्सन का बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, उनको बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स के अंदर डेवलप करने में हेल्पफुल होती है। पेन मैनेजमेंट, यदि किसी पर्सन का पेन मैनेजमेंट सीवियर पेन हो रहा है, तो उसको पेन को कम करने के लिए हेल्पफुल होती है। रिलैक्सेशन, हमारे बॉडीली जो मसल्स होती हैं, बॉडी की जो अदर पार्ट्स होते हैं, उनको रिलैक्स करने में हेल्पफुल होती है। हमारे अंदर एक सूदिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। जो पर्सन सूदिंग एजेंट, यदि सूदिंग एनेक्सिया सर्जिकल पेशेंट जो होता है उसको सूद करती है। मतलब सूद का मतलब हो गया जो पर्सन को सर्जिकल जो सर्जरी है या सर्जरी होने जा रही है, तो उससे वो क्या होगा, उसको एंजाइटी होती है, तो उस एंजाइटी को कम करने में हेल्पफुल होती है। उसको अवेयर कराते हैं कि ये सर्जरी जो है इतनी टिपिकल नहीं है, न इसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके बारे में उसको अवेयर कराना, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना, तो और उसके बारे में एक्सपोज कराना, तो दैट इज इसके द्वारा हेल्पफुल होता है। देन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस जैसा व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं यहाँ क्रिकेट अच्छी नहीं खेल सकता, बैडमिंटन अच्छी तरह से नहीं खेल सकता, वॉलीबॉल अच्छी तरह से नहीं कर सकता, मैं नेशनल लेवल पर अच्छा नहीं कर सकता, मैं इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों को हम एनालिसिस के द्वारा, साइको एनालिसिस के द्वारा हम ट्रीट कर सकते हैं। देन वेट लॉस, यदि किसी व्यक्ति का वजन कम होता है, ठीक है, वजन कम हो रहा है, सोच रहा है वजन कम हो रहा है, तो उसको वजन कम करना है, ठीक है, तो वजन कम करना है या वजन कम हो रहा है, तो उस कंडीशन को वजन कम हो रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन को भी ये सबसाइड करता है। जैसे वजन के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, फीमेल जो होती है वो स्टार्वेशन करती है, वजन को, जो वजन आपका बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प होती है। तो वेट लॉस जो होता है, उस वेट लॉस को भी पर्टिकुलर वेट लॉस के अंदर भी हम उसको इस थेरेपी को दे सकते हैं कि उसका वेट लॉस का कारण क्या है, और उसके कारण के द्वारा हम उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, यदि किसी पर्सन को स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो स्लीपिंग पैटर्न के द्वारा हम उसको हिप्नोटाइज के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा स्लीपिंग या उसको एनालिसिस करके हम उसकी जो पर्टिकुलर क्या हम इंटरवेंशन थेरेपी दे सकते हैं, तो उनके द्वारा हम उसको स्लीप डिसऑर्डर को हम करेक्ट कर सकते हैं। ग्रीफ एंड लॉस, किसी को यदि किसी चीज़ से उसको लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, पर्टिकुलर पर्सन लॉस हुआ है, या जॉब के अंदर उसका लॉस हुआ है, या पर्टिकुलर कोई भी कंडीशन हो सकती है जहाँ पर उसको ग्रीफ हुआ है, लॉस हुआ है, उसमें भी ये एनालिसिस करने के बाद हेल्पफुल होती है, जिसको हम गाइड कर सकते हैं और पेशेंट को हम उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं। इसकी पर्टिकुलर टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं।